Today we will discuss economic outcomes of democracy. Okay, it is on page number 94 in your NCRT book. Here you are watching this figure, right? This is a poor kid, right? He is a poor kid. What he is doing? He is telling you, tell me. Sees her mother, my goodness little fellow, how far did you fall down? पुअर लोग कितना नीचे चले गए, है ना? That is hunger की step पे. There is no schooling, no health care, no housing. They are dying for hunger. Okay? So this case is possible in democracy. This thing we are going to discuss. One of the economic outcomes of democracy is that in democracy there is very low economic development. Very low economic developments has been watched in democracy. The debate about economic outcomes of democracy is one such debate. That is, over the years many students of democracy have gathered careful evidence. We have got a careful evidence. We have got various types of witness that relationship of democracy with economic growth and economic inequalities is there is always economic inequality, right? In democracy, it is evident that in democracy there is low growth rate of economy. Clear? If we consider all these tables, first table shows that rates of economic growth for different countries. Clear? Here, yes, Anushka Tiwari is present. Okay, I can see. Types of regimes and countries. Clear? And growth rate. All democratic regimes have only 3.95 growth rate, 3.95% during 1950 to 2000. Okay, during 1950 to 2000, all democratic regimes have very low economic growth, and all dictatorial regimes they have quite high, that is 4.42%. Means in dictatorship there is maximum growth of national economy. Clear? So if we consider another table, here it is inequality of income in selected countries. There are some countries, that is South Africa, Brazil, Russia, USA, United Kingdom, Denmark, Hungary, right? तो here percent of means share of national income. इनका national income में share क्या है? साउथ अफ्रीका में top 20% they have 64.8% share of national income and bottom 20% have only 2.9%. ठीक है? And in this way top 20% have maximum share because they are rich people. That's why they are adding to national economy. But the case of Brazil, Russia, USA, they are just declining about top 20%. But bottom 20%, Hungary is just rising. Clear? So in this way, we can have a, you can say discussion, or we can have a, you can say analysis. Means how, economic growth means rises in dictatorial regime and it falls down in democratic regime. So this page describes this thing. Now we are going to take a new topic, and that particular topic is reduction of inequality and poverty. How we reduce inequality, because in society there is social inequality. There are many people rich and most of the people are poor. Why this inequality took place? It is because of our past history. Many invaders came to our country and they exploited national economy and they exploited our natural wealth. That's why those who were just near to British, or you can say colonial government, they became rich day by day, and those who were struggling for the democracy, they became poorer day by day. So we can say that perhaps more than development, it is reasonable to expect democracies to reduce economic disparities. So in economic, if we consider economic development, there are a lot of disparities.
there means peoples have of different economical state. Clear? So we can say even when a country achieves economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life? It was not possible because of democracy. Those who became rich, they remained rich, and those who were poor, they remained poorer and poorer. Means there were no program even in democracy so that the gap between rich and poor that could be cleared. So again one more question, is economic growth in democracies accompanied by increase in inequalities among the people? No. Means economic growth in democracies, this always increases. Okay. So he is also asking, do democracies lead to just distribution of goods and opportunities? क्या डेमोक्रेसी में हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लीड करती है, क्या वो बढ़ती है? तो ये हमारा वॉइस ऑफ पुअर, जो गरीब होते हैं उनका मुंह हम बंद कर देते हैं, है ना? द वॉइस ऑफ पुअर, दे आर स्टिच्ड विथ क्लॉथ, राइट? सो दे कैन नॉट रेज देयर वॉइस. वाई? बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली वीकर, and the forces means having more social contacts or more influential people, they always try to shut their mouth so that they could not raise their voice and could not reveal their misery, है ना? So this happens in democracy mostly. So democracies are based on political equality, isn't it? Means in democracy there is political equality and all individuals have equal weight in electing representatives. Everybody have fair chance of contesting election. Parallel to the process of bringing individuals into the political arena or an equal footing, we find growing economies inequalities. Means those people who are rich, they are getting ticket very easily, and those who are poor, they are not getting so, and they are not able to participate, right? So a small number of ultra rich enjoy highly disproportionate share of wealth and incomes. जो ultra rich people means more than rich people, they are enjoying wealth and incomes. Not only that, their share in total income of the country has been increasing. उनका जो शेयर है नेशनल इनकम में, ठीक है, वो बढ़ता जा रहा है, बिकॉज दे आर रिचर पीपल, दे आर वेल्दियर पीपल, दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड दे आर एंटरप्रेन्योर्स, दे आर रिच बिजनेसमैन. सो दोज एट द बॉटम ऑफ सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन. जो बॉटम में रहने वाले हैं इन सोसाइटी, दोज पीपल हु आर लिविंग इन बॉटम, ग्रास रूट लेवल, पुअर पीपल, देयर इनकम्स हैव बीन डिक्लाइनिंग. उनका तो इनकम और कम होता चला जा रहा है. अभी आप देखिए यहाँ पे जो कोरोना की वजह से सिचुएशन बनी, उसमें और पुअर लोग और पुअर होते चले जा रहे हैं. तो समटाइम्स दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. इवन उनकी रोजी रोटी छीन गई है, उनको बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ कैसे वो अपना फिर से कवर अप करें. जैसे फूड है, क्लोथिंग है, हाउस है, एजुकेशन है, हेल्थ है. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे आर अनेबल टू get admitted their ward in public schools where fees are high. It is because of their less economic income. So in actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. एक्चुअल लाइफ में डेमोक्रेसी हमारी जो ये इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, उसको मतलब सॉल्व करने में सफल नहीं हुई, उसको कम नहीं कर पा रही है. In class 9th economic textbook you have already studied about poverty in India. इंडिया में जो गरीबी है उसको आपने पढ़ा था 9th में. And the poor constitute a large proportion of our votes. Poors, they are voters, है ना, they are large in number. And no party will like to lose their votes. कोई पार्टी नहीं चाहती कि गरीबों का वोट हमारे हाथ से निकल जाए, है कि नहीं? Yet democratically elected governments do not appear to be taken to address the question of poverty. जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर के आती है वो पॉवर्टी के क्वेश्चन पे हमेशा जीरो हो जाती है. दे नेवर टेक इंटरेस्ट हाउ टू इंक्रीज, हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी. येट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स डू नॉट अपीयर टू बी कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी. उस पर कभी बात ही नहीं करते पॉवर्टी के क्वेश्चन पे. एंड द सिचुएशन इज़ मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज़. बाकी कंट्रीज़ में भी सिचुएशन बहुत बेकार है. वेरी वर्स कंडीशन इज़ देयर. फॉर एग्जांपल इन बांग्लादेश,
more than half of its population lives in poverty, है ना. तो बांग्लादेश has very poor country because it suffers from flood and it suffers from famine in per year. So people in several poor countries are now dependent on the rich countries even for food supply. तो हमारे पुअर कंट्रीज किस पे डिपेंड हो गए, रिच कंट्रीज पे, वहाँ से उनको फूड सप्लाई मिलती है, isn't it? एंड along with this, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिस्कशन का, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. हाउ वी विल एकोमोडेट, हाउ वी विल एडजस्ट आवर सोशल डाइवर्सिटी. हमारे समाज में जो विविधता है, मीन्स पीपल्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, पीपल ऑफ डिफरेंट सोसाइटी and people of different mind, people of other, understand? So do democracies lead to peaceful and harmonious life among citizen? क्या डेमोक्रेसी पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ लीड करती है सिटीजन के साथ? इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ. डेमोक्रेसी में हमेशा भाईचारा बना रहता है, उनकी सोशल लाइफ दैट इज़ वेरी एक्सपेक्टेशन हमारी क्या होनी चाहिए, इट शुड बी फेयर. सो वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर्स हाउ डेमोक्रेसीज एकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीज़न. हमारे जो सोशल डिवीजन्स हैं उसको कैसे एकोमोडेट एडजस्ट करती है डेमोक्रेसी. वी सॉ इन द फर्स्ट चैप्टर हाउ बेल्जियम हैज सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंसेज अमंग एथनिक पॉपुलेशन. बेल्जियम आपने देखा, वहाँ एथनिक प्रॉब्लम थी. डच एंड फ्रेंच पीपल्स दे हैव एथनिक प्रॉब्लम, है कि नहीं? कैसे डेमोक्रेसी में उनका नेगोशिएशन हुआ, समझौता हुआ, एंड 4 टाइम्स उनका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और बाद में जाकर के वो डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर हो गई. सो डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कंपटीशन. इट हैज़ सम प्रोसीजर हाउ टू कंडक्ट देयर कंपटीशन. इट हैज़ सम स्पेशल मेथड एंड दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टेंशन. इसलिए डेमोक्रेसी में टेंशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, लोग कम लड़ते मरते हैं, एंड कभी भी वो जल्दी एक्सप्लोसिव और वायलेंट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, एक कंपटीशन कराया जाता है ताकि लोग सेटिस्फाइड रहें अपने परफॉर्मेंस से, ताकि वो कभी एक्सप्लोसिव ना हो पाए या वायलेंट ना हो पाए. ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है डेमोक्रेसी में. सो नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस. हमारे समाज में कोई भी सोसाइटी वो परमानेंटली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को नहीं ख़त्म कर सकती, कोई भी कंट्री अमंग डिफरेंट, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस. हमें इनमें जो भेदभाव है उसको हम ये सीखते हैं कि हमें कैसे उनको रिस्पेक्ट करना है. एंड वी कैन ऑल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म. हम एक मैकेनिज्म निकालते हैं, उसका एक कोई ना कोई तौर तरीका ढूंढते हैं ताकि जो हमारे डिफरेंसेस है उनमें समझौता हो सके. जैसे रिलीजियस डिफरेंसेस की बात ले लीजिए, तो हमारे हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स दे आर लिविंग इन हार्मोनी. अब कभी भी इस तरह का रॉयट नहीं होता है क्योंकि वो नेगोशिएट कर चुके हैं, आपस में समझौता कर चुके हैं. अंडरस्टैंड? सो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट सूटेड, राइट? ओके, हाँ, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट सूटेड. क्लियर? डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम. डेमोक्रेसी में ये सबसे बड़ा आउटकम है कि वी कैन नेगोशिएट, वी हैव मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस. डिफरेंसेस को नेगोशिएट करने का हमारे पास एक मैकेनिज्म है, एक बहुत बड़ा आउटकम है, वन ऑफ द बेस्ट आउटकम. एंड इन नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई टू सप्रेस इंटरनल मैटर. और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो आंख बंद कर लेते हैं लोग, है कि नहीं? सो दिस हैपेंस जनरली. क्लियर? नाउ वी कैन रीच टू अनदर पेज. इट कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी. ठीक है, अक्सर डेमोक्रेसी में क्या होता है, वो एक मेजॉरिटी फॉर्म करती है. डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजॉरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. जब तक किसी पॉइंट पे सारे सिटीजन्स मेजॉरिटी का हिस्सा नहीं बन जाते हैं, तब तक वो डेमोक्रेसी नहीं रह जाती. मीन्स डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी को प्रीफर किया जाता है. क्लियर? सो इफ समवन इज बार्ड फ्रॉम बीइंग इन मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, अगर किसी को बर्थ के बेस पर
हम इस मेजॉरिटी से बाहर कर देते हैं, देन द डेमोक्रेटिक रूल सीजेस टू बी अकोमोडेटिव फॉर दैट पर्सन और ग्रुप। तब डेमोक्रेटिक रूल यहाँ पे सीज कर गया, बेकार हो गया, यूजलेस हो गया। डेमोक्रेसी उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रही, उसको एकोमोडेट नहीं कर पाई, क्योंकि हमने उसको उससे मतलब उस मेजॉरिटी से बाहर कर दिया। सो दिस एकोमोडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हियर इफ वी कंसीडर आवर एनिमीज केस एंड ग्रीटिंग, द टू इमेजेस डिपिक्ट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैन हैव ऑन सोशल डिवीज़न। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जो सोशल डिवीज़न होता है उसके ये दो पार्ट्स हैं। एक एनिमीज़ बन जाते हैं लोग एक दूसरे के, और एक दूसरे की ग्रीट करते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो दोनों केसेस हमारे डेमोक्रेसी में हैं। सो टेक वन एग्जाम्पल फॉर ईच इमेज एंड राइट अ पैराग्राफ ईच ऑन द आउटकम ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अगर सारे कंट्रीज एनिमी बन जाए डेमोक्रेटिक कंट्रीज, तब उसका आउटकम क्या होगा? और अगर सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज एक दूसरे से ग्रीटिंग्स, हाथ मिला रहे हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया, तब डेमोक्रेसी का आउटकम क्या होगा, है कि नहीं? सो वी कैन मेक अ पैराग्राफ ऑन दिस टॉपिक्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। डेमोक्रेसी स्टैंड्स much superior. Okay beta, I will take this topic tomorrow and discuss it, because there is some problem. Clear? And you can say we can, no, let us take this topic, not very long topic, dignity and freedom, है ना? डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीज़न। हमारे सिटीज़न की एक डिग्निटी होती है, आत्मसम्मान होता है हर सिटीज़न का, उसको फ्रीडम मिलना चाहिए हर सिटीज़न को। सो डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वन, इट इज सुपीरियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच प्रमोट डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। हर व्यक्ति की आत्मसम्मान की रक्षा करती है। Everybody is free, there is freedom to everyone. Every individual wants to receive respect from fellow beings. हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिले। Often conflicts arise among individuals because some feel that they are not treated with due respect. अक्सर लड़ाई कब होती है? जब हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको ये फील हो गया कि आई एम नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट। दैट्स वाई फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट एवरीबडी ट्राई टू fight with each other, and the passion for respect and freedom are the basis of democracy. So you can say, what is the basis of democracy? The passion for respect and freedom. हर व्यक्ति के अंदर एक पैशन होता है, एक उत्साह होता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिले और फ्रीडम मिले। यही डेमोक्रेसी का बेस है। सो डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस। पूरी दुनिया में हर कंट्री में डेमोक्रेसीज जहाँ जहाँ है वो इस बात को समझते हैं कि एवरीबडी शुड बी गिवन रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम, दिस एट लीस्ट इन वन प्रिंसिपल। दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसीज फॉर सोसाइटीज विच हैव बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन। तो ये क्या है, कैसे अचीव हो सकता है, हमें रिस्पेक्ट और फ्रीडम कैसे मिलेगा, है कि नहीं, हर डेमोक्रेसीज में? तो ये सोसाइटी पर डिपेंड करता है, और सोसाइटी किस तरह से बिल्टअप है, उसका बेसिस क्या है, एंड उसका सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन क्या है उस सोसाइटी का। इट इज़ नॉट अ सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको बहुत सिंपली नहीं कह सकते हैं कि जो है हर आदमी इक्वल है, कहीं कहीं पे अभी भी आज डिफरेंसेस है। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। आज महिलाओं के आत्मसम्मान का केस ले लीजिए। Most societies across the world were historically male dominated societies. ज़्यादातर सोसाइटीज़ में मेल को ज़्यादा मतलब प्रीफरेंस दिया जाता है। लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी। महिलाओं ने बहुत स्ट्रगल किया और उससे एक सेंसिटिविटी आई है सोसाइटी में, और उनको भी रिस्पेक्ट मिलने लगा है, isn't it? And we can say that everybody is getting respect in democratic countries. If we consider and they are getting equal treatment of women are necessary. हर कोई चाहता है वुमेन को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, उनको इंग्रेडिएंट्स मतलब सोसाइटी का एक इंग्रेडिएंट माना जाए, एक अहम हिस्सा माना जाए। एंड
दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि वुमेन को हरदम ही रिस्पेक्ट दिया जाए अगर वो गलत भी काम कर रही हैं। जो गलत काम कर रहे हैं उनको तो पनिशमेंट भी मिल सकता है। बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड, एक बार ये हमारा सिद्धांत जो है रिकॉग्नाइज हो गया, इसको मान्यता मिल गई, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली एंड मोरली। और अगर ये चीज़ हमारा मतलब एक तरह से रिकॉग्नाइज हो गया कि वुमेन को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या है कि अब वो एक स्ट्रगल लॉन्च कर सकती हैं अपने लिए लीगल वे में, ठीक है, अपने मोरल को और बचाने के लिए। सो इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड नॉट हैव लीगल बेसिस बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव द लीगल एंड मोरल फोर्स देयर। सो वी कैन से दैट ये जो हमारा अनएक्सेप्टेबिलिटी है, ठीक है, ये लीगल बेसिस पर है। ये जो प्रिंसिपल है हर व्यक्ति के फ्रीडम का और डिग्निटी का, ठीक है, इट इज़ लीगल नाउ, ठीक है, वुड नॉट हैव द लीगल एंड मोरल फोर्स देयर। कभी कभी इसके साथ जो है लीगली ट्रीट नहीं किया जाता है। द सेम इज़ ट्रू फॉर कास्ट इनइक्वलिटी, वही जातिवाद में भी है, हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट की भी प्रॉब्लम बनी हुई है डेमोक्रेसी में। So democracy in India has strengthened the claims of the disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity। हमारे यहाँ डिप्रेस्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC एंड जनरल क्लासेस। तो इनमें अक्सर जो है कुछ लोगों को डिसएडवांटेज मिलता है, उनको फ़ायदा नहीं मिलता, कुछ लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो ये गलत चीज़ है। देयर आर इंस्टांसेज स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ एंड एट्रॉसिटीज़। आज भी डेमोक्रेसी में ऐसे मौके वाक़े सुनाई देते हैं जहाँ पे कास्ट इनइक्वालिटी सामने आ जाती है और उनको यातनाएं दी जाती है। एट्रॉसिटीज़ मीन्स यातनाएं देना। बट दिस लैक द मोरल एंड लीगल फाउंडेशन, लेकिन ये जो है ये क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी का जो मोरल और लीगल फाउंडेशन उसमें कुछ कमी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। परहैप्स इट इज़ द रिकग्निशन दैट मेक ऑर्डिनरी सिटीजन्स वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स, है ना। क्यों कि शायद जो है ये जो रिकग्निशन है, मतलब ऑर्डिनरी सिटीजन्स को भी डेमोक्रेटिक राइट मिलना चाहिए, उनको भी रिकग्नाइज करना चाहिए। सो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है डेमोक्रेसी से, हमारी जो उम्मीदें हैं, ठीक है, ऑल दिस फंक्शंस एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एन डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारी जो उम्मीद है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरा कर रही कि नहीं। अगर हमारी उम्मीदों को पे खरी उतर रही है देन इट इज़ अ गुड डेमोक्रेसी। इफ इट इज़ नॉट डूइंग सो देन इट इज़ बैड फॉर अस। सो डिस्टिंक्टिंग अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। डेमोक्रेसी की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती, उसके सामने हमेशा चैलेंजेस आते रहते हैं। एज डेमोक्रेसी पासेज वन टेस्ट, जैसी डेमोक्रेसी एक टेस्ट पास करती है इट प्रोड्यूसेज अनदर टेस्ट, उसमें फिर से एक दूसरा टेस्ट तैयार हो जाता है। एज पीपल get some benefits of democracy they ask for more and want to make democracy even better, है कि नहीं। पीपल्स जितना ही डेमोक्रेसी उनको बेनिफिट दे रही है, पीपल दे आर आस्किंग मोर फ्रॉम देम। सो दैट इज़ वाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शन, अगर हम लोगों से पूछे कि डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है, दे विल ऑलवेज कम अप विथ मोर एक्सपेक्टेशन। वो तो कहेंगे अरे हमें तो ये दिया ही नहीं, इतने लोगों को नौकरी नहीं दी, इतने लोगों को ये नहीं मिला, इतने लोगों को अनाज नहीं मिला, इतने लोगों को जो है उनका वो छूट गया। तो बहुत सारी हमारी एक्सपेक्टेशंस है, कंप्लेंट्स है डेमोक्रेसी से। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये नहीं, मेन फैक्ट क्या आया, जो हमारा कंप्लेंट है डेमोक्रेसी से, यही जो है अगर उसको वो सॉल्व करती है तो वही उसकी सफलता है। इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस, और हमारी कंप्लेंट ये शो करती है कि लोग अवेयर अप हो रहे हैं। एंड द एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड टू लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स, जिनके हाथ में पावर है उनके ऊपर वो क्रिटिकल आइडियाज़ उनके पास है, और वो जो है अपनी एबिलिटी को शो कर रहे हैं। दे आर क्रिटिसाइजिंग। A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of the democratic project। जो हमारा पब्लिक एक्सप्रेशन है, जो जनता अपनी बातों को सामने रखती है, अपने असंतोष को व्यक्त करती है, जो डिससेटिस्फैक्शन है, असंतुष्टि है, जब पब्लिक इसको शो करती है तो ये डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी सफलता है।
It transforms people from the status of a subject into that of a citizen. इससे लोग प्रजा से एक नागरिक बनते हैं। प्रजा कहाँ होता है? जहाँ डिक्टेटरशिप मोनार्ची रूल होता है। एंड सिटीजन कहाँ होते हैं? डेमोक्रेसी में। सो मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव दैट देयर वोट्स मेक अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। अब हर व्यक्ति को ये विश्वास हो गया डेमोक्रेसी में कि हमारे वोट की वैल्यू है, हमारा एक वोट डिफरेंस डाल सकता है, इस गवर्नमेंट को गिरा सकता है या इसको बना सकता है। ओके चिल्ड्रन, so this was the lesson what we had described. Now there is exercise in front of you. We will discuss this exercise tomorrow and close this chapter, and I will also provide question answers. Okay, thank you for watching.